Hello students, welcome to all in this class of social science. The students, in previous module we have discussed about the life in grasslands. Today in this module we will discuss about the life in tropical and subtropical forest areas. Under this we will try to know about the life in Amazon basin and the Ganga Brahmaputra basin. First of all, we are going to discuss about Amazon basin. The students, Amazon basin is the largest river basin in the world, which lies in South America. Most of this region located in Brazil. Rest occupied parts of Peru, Ecuador and Colombia. In this region, world's largest and thickest tropical evergreen forests are found. So बेटा, Amazon basin वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर बेसिन है. यहाँ ये जो है साउथ अमेरिका में सिचुएटेड है. लगभग 2/3 एरिया इसका ब्राज़ील में लोकेटेड है और बाकी का कुछ पार्ट पेरू, यूकेडर और कोलंबिया में है. इस रीजन में वर्ल्ड के लार्जेस्ट और थिकेस्ट यानी लंबे और घने ट्रॉपिकल एवरग्रीन और रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं. द स्टूडेंट्स, Amazon is the second longest river in the world. But if we talk about the volume of water in river, then it is the world's biggest river. The climate of this region is hot and humid because of heavy rainfall and due to the location in the equatorial region. So बेटा, Amazon river वर्ल्ड की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है. अगर हम इसमें पानी की क्वांटिटी के हिसाब से देखें तो ये वर्ल्ड की बिगेस्ट रिवर है. इस रीजन में क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड यानी गर्म और आर्द्र होता है, मॉइस्चर वाला होता है, क्योंकि ये इक्वेटोरियल रीजन्स के पास लोकेटेड है और यहाँ हैवी रेनफॉल होती है पूरा साल. द स्टूडेंट्स, the Amazon basin is famous for its rainforests. Here the trees are very tall and thick, which are found in layers. The topmost layer is known as canopy. Below this, 2 more layers of shrubs and bushes are found. Due to the thickness of forest, the sun rays hardly reach the ground. The important trees of these forests are rubber, cinchona, the Brazil nut and quebracho. So बेटा, अमेज़न अपने रेन फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है. यहाँ ट्रीज बहुत टॉल और थिक होते हैं यानी लंबे और घने, जो कि लेयर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं. लीव्स की जो टॉप मोस्ट लेयर को कैनोपी के नाम से जाना जाता है और इसके नीचे 2 और लेयर्स होती हैं, श्रब्स एंड बुशेस पाई जाती हैं यानी झाड़ियाँ पाई जाती हैं. ये फॉरेस्ट इतने घने हैं कि सनरेज मुश्किल से ही ज़मीन तक पहुँचती है. इन फॉरेस्ट के इम्पोर्टेंट ट्रीज रबर ट्री, सिनकोना, ब्राज़िल नट और क्वेबंचो है. द स्टूडेंट्स, लेट्स नाउ डिस्कस अबाउट द वाइल्ड लाइफ इन दिस रीजन. The animals that are found here, most of them are arboreal, which means living on trees. Important arboreal animals are apes and lemurs. A variety of reptiles and amphibians like snakes, lizards and frogs are found. A wide range of colorful birds and butterflies are also found. Manioc and cassava are the most important food crops. Other crops which are grown in this region are coffee, maize, cocoa and Brazil nut.
सो बेटा अमेज़न बेसिन वाइल्ड लाइफ के लिए भी समृद्ध है, यानी यहाँ काफ़ी वन्यजीव पाए जाते हैं। यहाँ मोस्टली एर्बोरियल एनिमल्स पाए जाते हैं। एर्बोरियल मीन्स टू से जो एनिमल्स पेड़ों पर रहते हैं, और यहाँ इम्पोर्टेंट एर्बोरियल एनिमल्स जो पाए जाते हैं वो है एप्स यानी बंदर और लेमूर्स यानी लंगूर। यहाँ स्नेक्स, लिजर्ड्स यानी छिपकली, फ्रॉग्स यानी मेंढक आदि रेप्टाइल्स भी पाए जाते हैं। कलरफुल बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज यहाँ कॉमन है। मैन्योक एंड कसावा यहाँ की जो है मेजर फूड क्रॉप्स हैं। यहाँ पाए जाने वाले अदर क्रॉप्स कॉफ़ी, मेज यानी मक्का, कोकोआ एंड ब्राज़िल नट हैं। Dear students, with the discovery of the new world, people migrated from Europe to South America or Amazon basin. At present time, due to increase in population, many rainforests have been cleared for agriculture, urbanization and industrialization. Amazon basin attracts the people because of its vast economic potential. Forest areas were cleared to set up camps, or you can say lumbering camps, and constructing roads. So नई दुनिया की खोज के साथ यूरोप के लोग साउथ अमेरिका या अमेज़न बेसिन में माइग्रेटेड हो गए, यानी शिफ्ट हो गए। लास्ट कुछ डेकेड से यहाँ या कह सकते हो पिछले कुछ वर्षों से पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से डिफरेंट पर्पस के लिए, जैसे कि एग्रीकल्चर पर्पस, अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण और इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण रेन फॉरेस्ट को कट कर दिया गया है। इकोनॉमिक पोटेंशियल की वजह से, यानी यहाँ की इकॉनमी अच्छी होने की वजह से मोस्टली पीपल अमेज़न बेसिन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। लंबरिंग कैंप्स को सेटअप करने के पर्पस से और रोड्स बनाने के उद्देश्य से ज़्यादातर फॉरेस्ट एरियाज को क्लियर किया जा रहा है। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स नाउ टॉक अबाउट द लाइफ इन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। गंगा इज द मेजर रिवर of our country. Another important river is Brahmaputra. Join Ganga in Bangladesh and form the world's largest delta, which is known as Ganga Brahmaputra Delta. You know बेटा, गंगा हमारी कंट्री की एक मुख्य नदी है, मेजर रिवर है, और दूसरी मेन रिवर ब्रह्मपुत्र है। गंगा और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में एक साथ मिलती हैं और वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनाती हैं, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा यानी या फिर सुंदरबन डेल्टा भी कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज ए पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन of our country. The northern plains lies to the south of foothills of the Shivalik. It is a vast flat land and stretch over 2500 kilometers. So dear students, Ganga Brahmaputra Delta इंडियन सबकॉन्टिनेंट, यू कैन से इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन का एक पार्ट है। यह शिवालिक की फुट हिल्स, मतलब कि ये कह सकते हो यह शिवालिक की फुट हिल्स के साउथ में लोकेटेड है। यह एक बहुत बड़ा फ्लैट लैंड है जो 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। The students, northern plain is drained by 3 big rivers of our country, that is the Indus, the Ganga and the Brahmaputra. These 3 rivers brought alluvium from the Himalaya mountains and deposit it in northern plain. The distributaries of rivers form a network of water channel and drain into Bay of Bengal. The northern plain stretches over Haryana, Uttar Pradesh, Bihar,
West Bengal and Assam. The rivers carry huge amount of sediments which make the soil very fertile. नॉर्दर्न प्लेन्स बेटा इंडिया की 3 बिग रिवर्स लाइक इंदस रिवर, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर्स के थ्रू ड्रेन्ड होता है। ये तीनों रिवर्स हिमालय माउंटेन से एलुवियम लाती हैं और नॉर्दर्न प्लेन्स में जमा करती हैं। रिवर्स की डिस्ट्रीब्यूटरीज वाटर चैनल का एक नेटवर्क बनाती हैं और लास्ट में वो बंगाल की खाड़ी में बह जाती हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स में हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और असम स्टेट्स इंक्लूडेड हैं। ये रिवर्स अपने साथ काफ़ी क्वांटिटी में यानी काफ़ी मात्रा में सेडिमेंट्स लेकर आती हैं जो इस प्लेन की सोयल को बहुत फर्टाइल बनाती हैं। The students, the climate of Ganga Brahmaputra region is hot and humid. Here the rainfall is heavy, which occur during the monsoon season from July to August. Here the average rainfall is more than 200 centimeter. The Brahmaputra basin is mainly covered with tropical deciduous forests. But nowadays this area has been converted into farms and settlements. So गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन का क्लाइमेट बेटा हॉट एंड ह्यूमिड है यानी गर्म और आर्द्र है। यह रेनफॉल बहुत हैवी होती है यानी ज़्यादा होती है जो कि मॉनसून सीजन यानी जुलाई टू अगस्त के बीच में होती है। यहाँ एवरेज रेनफॉल अबाउट 200 सेंटीमीटर है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन मेनली ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट से कवर्ड है, बट आजकल ये एरिया फार्म्स और सेटलमेंट में कन्वर्ट हो गया है और यहाँ खेती की जाने लगी है। फॉरेस्ट कट करके यहाँ बस्तियाँ बना दी गई हैं। Dear students, the lower part of this region is covered with mangrove forest. In this forest, the most dominant tree, Sundari, is found. That's why this area is known as Sundarban. बेटा गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन का जो लोअर पार्ट है वो मैनग्रोव फॉरेस्ट से कवर्ड है। इन फॉरेस्ट में सबसे जो मुख्य वृक्ष है वो सुंदरी पाया जाता है। दैट्स वाई इस एरिया का नाम क्या पड़ गया, सुंदरबन पड़ा। The students, if we talk about the animal life in this region, then different kinds of wild animals are found here. The most common animals are one-horned rhinoceros and Bengal tiger. You can see in this picture. A famous wildlife sanctuary, that is Sundarban Wildlife Sanctuary, is located here. बेटा अगर हम बात करें एनिमल लाइफ की, वाइल्ड लाइफ की, तो इस रीजन में डिफरेंट टाइप्स के वाइल्ड एनिमल्स पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले जानवर यहाँ एक सींग वाला गैंडा और बंगाल टाइगर्स हैं। यहाँ सबसे फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सुंदरबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो भी इसी रीजन में लोकेटेड है। Dear students, the soil of Ganga Brahmaputra region is very fertile and various crops are grown here like rice, wheat, sugarcane, jute and tea. The most common industries of this region are textiles and sugar industries. Important towns like Haridwar, Allahabad, Varanasi, Patna and Guwahati are located on or near the banks of rivers. These cities are developing at a very fast rate. So बेटा गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन की सॉइल बहुत फर्टाइल है और यहाँ की सॉइल डिफरेंट क्रॉप्स लाइक राइस, वीट, शुगर केन, जूट और टी के लिए काफ़ी सूटेबल है। इस रीजन में शुगर इंडस्ट्री और
टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज यानी कपड़ा उद्योग यहाँ की कॉमन इंडस्ट्रीज हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन के इम्पोर्टेंट टाउन्स बेटा हरिद्वार, इलाहाबाद, वाराणसी और पटना और गुवाहाटी हैं, जो कि रिवर्स और रिवर बैंक्स के पास लोकेटेड हैं। और ये सिटीज़ काफ़ी फास्ट रेट से डेवलप हो रही हैं। So dear students, today in this module we have get acquainted with the life in tropical and subtropical forest areas, and we have also discussed about the two basins, that is Amazon basin and the Ganga Brahmaputra basin. Each of them have their own particular features and play an important role in the development of economy. Thank you. Stay blessed and stay happy.